اپنے ہاتھوں کو بلند کरेंगे. قدوس 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 قدوس. قدوس. The Holy Spirit. ہولی اسپرٹ چھولے. مکاشوہ کی کتاب اس کا 13واں باب اس کی 11ویں آیت سے 18ویں آیت تک دیکھیں گے. خدا کے کلام میں لکھا ہے، پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین سے نکلتے ہوئے دیکھا. اس کے برے کے سے 2 سینگ تھے اور اژدہا کی طرح بولتا تھا، اور یہ پہلے حیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے کام میں لاتا تھا. زمین اور اس کے رہنے والوں سے اس پہلے حیوان کی پرستش کرواتا تھا جس کا زخم کاری اچھا ہو گیا تھا، اور وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا تھا، یہاں تک کہ آدمیوں کے سامنے آسمان پر آگ نازل کر دیتا تھا. اور زمین کے رہنے والوں کو ان نشانوں کے سبب سے جن کے حیوان کے سامنے دکھانے کا اس کو اختیار دیا گیا تھا اسی طرح گمراہ کر دیتا تھا. زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ جس حیوان کی تلوار لگی تھی وہ زندہ ہو گیا ہے، اس کا بت بناؤ. اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ حیوان کا بت بولے، اور جتنے لوگ اس حیوان کی بت کی پرستش نہ کریں گے ان کو قتل بھی کرے. اور اس نے سب چھوٹے اور بڑے، دولت مند، غریب، آزاد، غلاموں کے دہنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کر دی، تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد نہ ہو کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے. حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے. خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا جہاں ہم سب کے باعث سے برکت ہو. کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ آج کے کلام سے آمین اپنے آمین دشمن کو پوری طرح تاڑ لیں آمین آمین اور اپنے خدا کو خوب پہچان لیں آمین اور جان جائیں کہ وہ زندہ خدا کے لوگ ہیں. آمین. کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ آج وہ دشمن پر فتح پائیں، ہلیلویا. اس سے پہلے کو آپ کو ہاتھ ڈالے آپ آسمان پر اڑ جائیں. آمین. کتنے لوگ چاہتے ہیں یہ برکت میرے ساتھ جائے، ہلیلویا. کیونکہ یہ گھڑی اسی کلام کے لیے ہے کہ آپ خدا سے برکت پائیں اور ہوا میں اڑ کر کیا کریں. کتنے لوگ اس آمین. مقصد کے لیے تیار ہو رہے ہیں؟ آئیے بلند نعرے کے ساتھ خدا کے کلام کی تمجید اور تعظیم کریں گے. ہلیلویا. یسو کے خون میں، پتہ ہے، یسو نام میں پتہ ہے. اتقدس ایک تعظیم آپ کے بیٹھنے میں، ایک تقدس ایک تعظیم. دنیا میں کوئی ایسا کلام نہیں ہے جو آپ کو اپنے دشمن کے بارے میں بتائے اور پورا پورا بتائے، اور دنیا میں ایسا کوئی کلام نہیں ہے جو خدا کے بارے میں پورا پورا بتائے. یہ بائبل مقدس ہے جو خدا کے الہام کو ظاہر کرتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم وجود میں آتے، خلق ہوتے، میرے بے ترتیب مادے کی کوئی شکل اور صورت بنتی، یا میں جسم وجود میں آتا، میں ماں کے پیٹ میں پڑتا، جو کچھ میرے ساتھ یا ہونا تھا وہ پہلے سے جانتا ہے. ہاللیلویا. یہ وہ خدا ہے جو آپ کے ماضی، حال اور مستقبل کا خدا ہے. اس نے کہا میں آج اور کل اور اب تک یکساں خدا ہوں. اگر آپ نے کلام کو غور سے سنا تو آج اس جہان کو اور اپنے آپ کو خوب پہچان جائیں گے، اور اگر آپ اپنے آپ کو پہچان گئے تو آپ اس جہان سے باہر نکل آئیں گے. کیا سب ہاتھ اٹھا کے بولیں گے ہاللیلویا؟ جب کلام یہاں آتا ہے تو آپ کی قدوس کی آواز نہیں آتی ہے. قدوس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ تیرے سوا کوئی پاک نہیں ہے. تو ایسا پاک ہے، آسمان پر ہر وقت فرشتگان قدوس 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 کہتے رہتے ہیں، اس کی قدوسیت کو جلال دیتے رہتے ہیں، اور آسمان کیسا رہتا ہے؟ شاد رہتا ہے، روشنیوں سے
खूबसूरती से, अमन और चैन से, सुकून, इत्मीनान और तसल्ली वहां रहती है, क्योंकि खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिलता है। जानते हैं हमारे बदनों में गड़बड़ी क्यों है? हम बेचैन क्यों हैं? हम बीमार क्यों हैं? हम परेशान क्यों हैं? हम हर रोज मेहनत क्यों करते हैं? हम हर रोज उदास क्यों होते हैं? हम हर रोज बदलने की कोशिश करते हैं, हर रोज गिर जाते हैं, हम हर रोज उठना चाहते हैं, हर रोज कमजोर हो जाते हैं। जानते हैं क्या वजह है? क्योंकि हमारा अदद नक्स है। पता, यही इंसान का अदद और यही शैतान का अदद है। इंसान का अदद भी 666 है और शैतान का अदद भी 666 है। लेकिन यहां एक जिक्र किया गया है, एक खास इंसान है जिसका अदद 666 होगा। ऐसे बहुत से जालिम लोगों का नाम 666 था, बहुत से बादशाहों का अदद 666 था। नाम के अददों को शुमार किया जाता है, उनके हिस्सों को लिखा जाता है। एक इल्म है जिससे हर शख्स का अदद निकलता है। ये सिस्टम है एक। तो जैसे खुदा का एक अदद है, ऐसे शैतान का भी एक अदद और एक इंसान का भी क्या है, एक अदद है। खुदा ने क्या कि आदम तेरे सबब से जमीन क्या हो गई? इस जमीन में कहीं मौत नहीं थी। इस जमीन को खुदा ने इतना खूबसूरत बनाया था, आप सोच भी नहीं सकते। आप कभी समुद्र के सामने खड़े होकर देखिए, वो कितनी ठाठे मारता है, सतह जमीन से ऊपर नजर आता है आपको, मगर मजाल है कि वो बाहर आ जाए। हालेलुया। यह आसमान हमारे जमीन से कई गुना बड़ा है, आप इसका तस्वर नहीं कर सकते हैं। इतनी गैलेक्सीज हैं आसमान पर, इतने सितारे और सितारे हैं जो जमीन से भी बड़े हैं, कितने सूरज हैं जो आसमान पर हैं, और उन सब के ऊपर उसका तख्त लगा है जो रब्बुल उफाज है। हालेलुया। सो खुशकिस्मती ये है कि हम उस अदद की प्रस्तुत करते हैं जो कामिल और कमाल है। यहां जो कुछ लिखा है ये बहुत खतरनाक है। मेरी दुआ है आपके लिए कि ये दिन कभी आपको देखना ना पड़े, क्योंकि ये 13वां बाप आने वाली घड़ी के बारे में एक बहुत बड़ी मुसीबत है। लेकिन खुशकिस्मती ये है कि ये रैप्चर के बाद ये सब कुछ होगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अगर आप तैयार ना हुए तो आप इसमें शामिल हो जाएंगे। मैं जानता हूं आपकी तैयारी नहीं है, मैं आप सबको जानता हूं, लेकिन इस कलाम को खुलने का मकसद है, खुदा के मकाशवा के कलाम का मकसद है कि हम सब क्या हो जाएं। काश हम सब हाथ उठाते हैं, सुस्त कवारियां आसमान पर नहीं जाएंगी। इस कलाम का मकसद कि हम सब क्या हो जाएं, क्या हो जाएं। मैं ऊंचा सुनना चाहता हूं, क्या हो जाएं, तैयार हो जाएं। नबूवत की किताब आपके लिए है, ये डराने के लिए किताब नहीं है, ये आपको सिखाने, समझाने और तैयारी के लिए कलाम है। इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला क्या है, मुबारक है। काश आप सब बोलते हैं, आप इसमें शामिल होते हैं और इसका हिस्सा होते हैं। मगर शुक्र करते हैं अपने खुदावंद यीशु का, क्योंकि बैक वक्त वो इंसान था और बैक वक्त वो क्या था, खुदा था। वो वाहिद इंसान था जिसकी जात में गुनाह नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। कायनात में एक ऐसा बशर पैदा किया खुदा ने जिसकी जात में गुनाह ना था।
आदम गुनाह में गिरा और जमीन उसके सबब से क्या हो गई? लानती हो गई। जब मैं ये फर्स्ट टाइम मैंने कलाम पढ़ा था कि जमीन आदम के सबब से लानती हुई, तो एक दफा दिमाग चकरा गया था। कोई खुदा का रूह मुझे सिखा रहा था कि हम ऐसी जगह पर रहते हैं जहां खुदा ने इतना कुछ बनाया, लेकिन इसके बावजूद हम लानत में हैं। जानते इस लानत का एंड क्या होता है? जानते इस लानत का एंड क्या होता है? इंसान मर जाता है। इंसान क्या होता है? इतना कुछ करने के बाद, इतना कुछ खाने के बाद, इतना कुछ समेटने के बाद इंसान मर जाता है। इससे बड़ी लानत नहीं है। सब कुछ आप अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने घराने के लिए, अपने लिए जमा करते हैं और ये भूल जाते हैं कल को आपको छोड़ के जाना है। यीशु ने कहा लोमड़ियों के भट्ट होते हैं पर इब्ने आदम के सर धरने की जगह नहीं है। यहां 666 का अदद एक शख्स का अदद है। एक झूठा नबी दुनिया में बर्पा होने वाला, एक झूठा मजहब दुनिया में गवर्नमेंट पैदा करने वाली है। यानी कि सब खुदा हैं, कोई किसी के खुदा के बारे में बात नहीं करेगा। सब खुदा हैं, पत्थर भी खुदा हैं, सांप भी खुदा हैं, देवी देवते भी खुदा हैं, और पत्थर और मूर्तें भी, कब्रें भी क्या हैं? खुदा हैं। उसने कब कहा कि वो मुर्दों का खुदा है? वो तो जिंदों का खुदा है। सो फर्क है। इस फर्क को इब्लीस मिटा देना चाहता है, क्योंकि वो बुतों में है, वो कब्रों में है, वो मंदिरों में है, वो मूर्तियों में है, वो इंसानों में है, और हर जगह जहां खुदा नहीं वो मौजूद है। और वो इस अदद के सबब से हर चीज को नापाक करता जा रहा है। लेकिन आखिरी अयाम में बकायदा एक नबी बर्पा होगा जो झूठा नबी कहलाएगा और इस्राएल में से बर्पा होगा। देखिए मैं आपको पहले बता रहा हूं, दो अजदाहा है। पहला अजदाहा समुद्र में से निकला और दूसरा जमीन में से। जो समुद्र में से निकला वो 10 हुकूमतें हैं यूरोप की, जो बहुत जल्द एक करेंसी यानी कि यूरो, एक पासपोर्ट, एक फौज और एक असेंबली के साथ रुनमा होगा। उसमें से एक बड़े इख्तियार के साथ वो पूरी दुनिया को होल्ड करेगा। एक शख्स सियासी तौर पर उभरेगा और इब्लीस अपना इख्तियार उसको दे देगा ताकि वो और जोरावर हो जाए। और ये झूठा नबी जो बर्पा होगा, ये उस अस्तहा की प्रस्तुत करवाना चाहता है जिसका अदद 666 है। यही इंसान का अदद और यही शैतान का अदद है। सो जिसके कान वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आपको पहचानना है। आज बहुत खूबसूरत बात इस कलाम में खुदा के रूह ने मुझे सिखाई है। मैं जब ये पढ़ रहा था तो मैं क्या, खुदावंद ये तो सब चीजें, इंसान और शैतान एक जगह जमा हो गए हैं, क्या बनेगा हमारा। फिर मैं किसी काम लग गया तो खुदा के रूह ने आकर मेरे कान में एक बहुत खूबसूरत बात कही और मैं उछल पड़ा कि वाह खुदावंद तू अजीब है और तेरे काम हैरतंगेज है। सो ये अदद बहुत खतरनाक है और 666 का अदद आपके पूरे जिंदगी को कंट्रोल करने वाला है। आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके बैंक, आपका खाना, आपका पीना, आपका उठना, आपका बैठना, आपकी सब चीजों को कंट्रोल कर लिया जाएगा। आप कहां जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या बेचा है, क्या लिया है, क्या दिया है। लेकिन सब गवर्नमेंट्स यही काम को कर रही हैं ताकि आपके बारे में ज्यादा ज्यादा जान दिया जाए। जगह जगह कैमरे हैं, आपकी फोटोज बन रही हैं,
जगह जगह आपको डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, आपके बैंक में कितना पैसा, आप क्या कमाते हैं, कहां से आता है, ये काम शुरू हो चुका है। सो ये सब चीजें कलेक्ट करके आपको बांध दिया जाएगा ताकि आप हिल ना सके। और ये सब चीजें ये गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेगी। और फिर जब वो देखेगी कि खुदा ने आखिरी अयाम में इस्राएल के ऊपर मोहर कर दी है, 1,44,000 पर क्या कर दी है? मोहर कर दी है। तो इब्लीस भी चाहेगा कि वो अपनी लोगों पर क्या कर दे? मोहर कर दे। सो इस अदद को लॉन्च कर दिया जाएगा पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी कम्युनिटीज के अंदर, कि सब लोग इसकी छाप लें। छाप से मुराद कि कोई ना चीज आपके जिस्म में डाल दी जाएगी, आपके माथे पर, आपके हाथ पर, ताकि आप हर जगह आसानी से जा सकें। जिसके ये चिप लगी होगी, जिसके अंदर ये अदद लगा होगा, इब्लीस का अदद लगा होगा, वो हर जगह आ जा सकेगा। जैसे कोरोना में हुआ था कि जिसके पास उसका सर्टिफिकेट नहीं होगा, कार्ड नहीं होगा, अगर आपने इंजेक्ट नहीं करवाया है तो आप प्लाजा में दाखिल नहीं हो सकते। ऐसा ही है, आप ऑफिस में नहीं जा सकते, आप खाना नहीं ले सकते। इसी तरह का दौर शुरू होगा कि आपको पूरी तरह हैंग कर लिया जाएगा। और यही इंसान का आदत और यही शैतान का आदत है। आप इस सिस्टम में दाखिल हो चुके हैं। मैं को 10 साल के बाद नहीं होने वाला, आप इसमें खड़े हैं, आप इस दौर के अंदर खड़े हैं और आप इस दौर का हिस्सा बन रहे हैं। और ये सब कुछ बहुत जल्द होने वाला है। हम आखिरी अयाम में खड़े हैं, मगर आपको फिक्र है क्या खाएंगे क्या? खुदा के कलाम लिखे इन सब चीजों की फिक्र में गैर कौमें रहती हैं। तुम्हें फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि मैं यहोवा, जिनका यहोवा यरी था सिर्फ उन्होंने हाथ खड़ा किया है। मैं यहोवा यरी हूं, क्या करूंगा? मुहैया करूंगा। होशियार रह के बैठे, ये कलाम आपको बरकत देगा। यकूब ने बरकत छीनी थी कुश्ती करके, उसको ऐसे नहीं मिल गई थी। आपको कुश्ती करनी पड़ेगी इस जहान में। हम इस इबादत को, इस प्रस्तिश को एक रस्म समझते हैं, लेकिन ये आसमान पर ले जाएगी आपको। हालेलुया। इससे, इस प्रस्तिश से आसमान खुल जाता है और हमारा अदद बदल जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इब्लीस, उसका आदत भी 666 है, उसके बुतों का आदत भी 666 है, और इंसान का आदत भी 666 है। और जो इब्लीस बर्पा होने वाला है, जो गवर्नमेंट और झूठा नबी बर्पा होने वाला है, उन दोनों का आदत भी 666 है। हमारी जिंदगी में खुदा ने कुछ कर दिया है। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? आइए अपने कदमों पे खड़े होंगे। यीशु ने क्या कहा?